नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Govind Jaya Jaya Gopal Jaya, Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govind 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 Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe.
जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी है तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी है तुम्हें। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Deva Deva. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Bhagavate Vasudeva. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Devayutam Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatim Uttama Sloke Bhakti Bhavati Nishta। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 19। तो हम पहले श्लोक का पढ़ेंगे अनुवाद के साथ, फिर उसके बाद मंगलाचरण के बाद हम लोग श्लोक पर चर्चा करें, प्रभुपाद के तात्पर्य के बारे में हम लोग चर्चा करें। अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत् चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् आस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। सिद्ध की अवस्था में, इसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी
कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समग्र दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्लोक संख्या 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। श्लोक संख्या 25। शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और वश में लाए। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूत कल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 28। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संपर्शम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भगवद गीता क्लास में। तो हम अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 19 में चर्चा करेंगे आज। श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक योगी को एक दीपक के साथ तुलना की गई। जैसे एक वायु रहित स्थान में जहां पर हवा बिल्कुल ना हो और एक दीपक को रख दिया जाए तो दीपक की जो लौ है एकदम सीधी जलती, एकदम हिलता डुलता नहीं। उसी तरह एक योगी जो होता है अगर उसका मन वश में होता है, कहते हैं कि अगर आपने अपने मन को वश में नहीं किया तो मन जो है आपको वश में कर देगा। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड you will be controlled by your mind. His Grace Gopal Krishna Goswami Maharaj say that कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो आपका मन जो है आपको अपने कंट्रोल में कर देगा। इसलिए हमारा मन जो है वश में होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे योगी का मन वश में होता है। तो इस श्लोक में एक योगी को एक दीपक के साथ तुलना की गई है कि अगर दीपक को वायु रहित स्थान पर रखेंगे तो उसकी जो है लौ एकदम हिलेगी डुलेगी नहीं। उसी तरह अगर योगी ने अपना मन वश में कर लिया तो उसका जो मन है वो भौतिकता में लिप्त नहीं होगा। यह है श्लोक संख्या 19 में बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो योग होता है ना, इसमें पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, इसमें सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस योगी का मन वश में होता है उसका जो मन है वो मुझ में लगा रहता है। अगर उसका मन भौतिकता में लगेगा तो कृष्णा में नहीं लग सकता। तो अगर कृष्णा में मन लगाना है तो भौतिकता से दूर हटना ही पड़ेगा। तो दोनों में एक ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि मैं भौतिकता में खूब मजे करूंगा और कृष्ण को भी पूज लूंगा, कृष्ण की भी याद कर लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप भौतिकता में रहिए या तो
कृष्ण के पास रहिए। ये दोनों में से एक ही होता है। ये जो है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 19 में। उसके बाद भगवान जो आगे बताने वाले हैं उसके बारे में कि आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, ये श्लोक संख्या 20 से 23 में बताने वाले। और एक योगी जो समाधि में होता है उसका उसका जो है दृष्टि कैसी होती है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है। और एक योगी जो समाधि में पहले से ही स्थित रहता है उसके कार्य कैसे होते हैं, उसके एक्शन कैसे होते हैं, इस श्लोक संख्या 31 से 32 में बताया जाएगा। ये भगवान जो है हमें अलग अलग श्लोकों में बताने वाले हैं। तो एक योगी जो होता है, वो जो समाधि में होता है, उसके साक्षात्कार क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो योगी है समाधि में है या नहीं है। तो एक योगी जो होता है उसका जो है मन वश में होता है और एकदम फोकस होता है। फोकस कहां पर होता है? सत्य की तरफ। एक सत्य की तरफ निष्ठ होता है, निष्ठावान होता है। आप किसी चीज पर मन तभी लगा सकते हैं जब आपको उसके ऊपर विश्वास होगा। विश्वास ही नहीं है तो फिर मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपना समय व्यस्त जाने दे रहे हैं। तो ऐसे इसमें आप अपना समय जो है वेस्ट ना करें। आपको कृष्णा में विश्वास होगा तो ही आप कृष्णा में मन लगा पाएंगे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि योगी का मन जो है एकदम फोकस होता है और हमेशा सत्य पर टिका रहता है। वे सत्य कौन है? कृष्ण। कृष्णा ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो योगी का मन जो है फोकस होता है और हमेशा सत्य पर स्थित रहता है। और जब योगी समाधि में होता है तो वो कृष्ण को प्राप्त कर चुका होता है। जब आप किसी हायर चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो लोअर पर की कीमत, इतनी कीमत हम नहीं देते उसको, उसकी कीमत नहीं रह जाती क्योंकि आप हायर पे पहुंच गए। वैसे ही जो योगी समाधि में होता है वो कृष्णा को प्राप्त कर चुका होता है। कृष्णा में पूरा उसका मन लग चुका होता है, उसका मन जो है वश में रह के कृष्णा में मन लगा लिया होता है। और वो कृष्णा को प्राप्त करना जो है एक तरह से हायर गेन है, हायर टेस्ट है ना। कि जैसा आप एक बार 5 स्टार में अगर खाना खा लिया तो बाकी छोटे मोटे होटल में आपको जाने का मन नहीं करेगा। ठीक वैसे ही कृष्णा की प्राप्ति मतलब हायर गेन है, उच्च प्राप्ति। अगर आपको कृष्णा की प्राप्ति हो जाती है तो आपको और छोटी मोटी चीजों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो कृष्ण का भक्त होता है, जो योगी समाधि में पहुंच चुका होता है, उसकी पहचान कैसे की जाए? वो जो है एकदम डिगता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। चाहे कितने सुख आ जाए, चाहे कितने दुख आ जाए, वो एकदम अडिग रहता है। कितना भी तकलीफ उसको दे दो, योगी जो समाधि में होता है उसको आप कितना भी तकलीफ दे दो, वो जो है एकदम हिलता डुलता नहीं है, विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन वश में होता है, उसे कृष्णा की प्राप्ति हो चुकी होती है, वो कृष्णा में लीन होता है। तो जो भी सुख आए दुख आए वो कृष्णा का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेता है। जब आप कृष्णा का आशीर्वाद समझकर किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको उसमें से आसक्ति निकल जाती है और वो कृष्णा की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो सुख और दुख में एक योगी एक ही समान रहता है, वो विचलित नहीं होता बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि उसका मन जो है कृष्णा में लगा हुआ है, वो अपना सब कुछ कृष्णा को दे चुका होता है। तब ये कृष्णा की जिम्मेदारी बन जाती है कि योगी को सुख है या दुख है, वो उसके तो भगवान जो है, कृष्णा जो है, योगी के दुख को हर लेते हैं और ऐसा वातावरण बना देते हैं कि योगी जो है भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ता रहे और दूसरों को भी भगवत प्राप्ति प्राप्ति में जोड़ता रहे। तो जैसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आप जितना ही प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही लोग कृष्णा के साथ जुड़ेंगे, उतना ही जग का कल्याण होगा। तो जग का कल्याण कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम कैसे लेंगे? महामंत्र दिया गया है, हमें आचार्यों से मिला है और ओरिजिनली चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने शस्त्र दिया है, कलयुग का शस्त्र है ये। कितना भी दुख आए दुश्मन को मार गिराता है। तो महामंत्र में इतनी शक्ति है। चलिए फिर एक बार महामंत्र पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस महामंत्र को आपको दिन रात जपते रहना है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मन में भगवान का नाम लेते रहिए और सुबह हो सके तो जल्दी उठिए और भगवान का नाम जप कीजिए। तो प्रभुपाद ने अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं कि 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला करनी है। अब 4 नियम कौन से हैं? आपको अवैध संबंध से दूर रहना है, आपको जो है मांस भक्षी नहीं होना है और जुआ नहीं खेलना है और दारू शराब नहीं पीना है। ये 4 नियम से आपको दूर रहना है। 4 नियम से दूर रहना है और भगवान का जो है नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी तरह से महामंत्र का जाप अगर आप सुबह उठ के करेंगे तो इसका प्रभाव बेहतर होता है। नहीं अगर आपको समय मिलता है तो आप जो है हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। ये जो है कलयुग का शस्त्र है। और जो योगी समाधि में होता है उसके अंदर कोई कृपणता नहीं होती, कृपण नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि कृपण आप तभी होंगे, मिजरीज तभी आएंगी जब आप भौतिकता के संग में रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि लालच, भौतिकता में रहोगे तो लालच आ जाता है। आज मेरे पास 1 लाख है तो 2 लाख कैसे हो, 4 लाख कैसे हो, 5 लाख कैसे हो। तो आप अपना सब कुछ पीछे छोड़ के सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो। उसको बोलते हैं मटेरियल हैंकरिंग। तो योगी जो समाधि में होता है उसे कोई भी कृपणता, मटेरियल आसक्ति नहीं होती। और महामंत्र का जप करने से आप जप करके देखिए, हमेशा आप खुश रहेंगे। प्रभुपाद भी कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो योगी होता है, जो समाधि में होता है, वो हमेशा खुश रहता है। क्यों? क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के को समझ चुका होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, वो समझ चुका होता है। इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। क्या दुख क्या सुख, ये तो भौतिकता के हैं सुख और दुख। जो योगी समाधि में है उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी तरह भगवान पर आश्रित होते हैं और जो भगवान पर आश्रित होता है भगवान उसका ख्याल रखते हैं। तो कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। तो जहां कृष्णा है वहां अंधकार नहीं, लेकिन जहां माया है वहां अंधकार है। क्योंकि वहां हमें सब चीज जो है भौतिकता हमें बांध लेती है, हम कंडीशन हो जाते हैं। 3 जो ये होते हैं, सत्व गुण रजोगुण
तमोगुण, ये हमको बांध लेते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, ये तीनों गुण हमको बांध लेते हैं। हाँ, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरी है, ये मेरी भाई पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरी बंधा होता है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो इस दुनिया का, इस संसार का, इस भौतिक संसार का एकमात्र जो किलर है ना, वो है अहम, मेरा है, मैं हूं। ये जो है एकदम भौतिकता में बांध कर रखा है। तो ये है आत्म साक्षात्कार के तरीके। मतलब योगी जो समाधि में होते हैं उसके अंदर ये साक्षात्कार होता है कि वो हमेशा जो है फोकस होता है कृष्णा, सिर्फ सिर्फ वो कृष्णा, सत्य पर विश्वास करता है। और सत्य कौन है? कृष्ण। और योगी की दृष्टि कैसे होती है, उसका विजन क्या होता है? और योगी देखता है कि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। जहां आत्मा है वहां परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है। कब बिछड़ेंगे? कब? जब शरीर छोड़ने का समय आएगा। तो ये जब दोनों बिछड़ जाएंगे, शरीर को छोड़ देंगे, तो शरीर जो है मृत शरीर माना जाता है, डेड बॉडी। अगर शरीर में आत्मा ना हो, परमात्मा ना हो, सांसें नहीं चल रही हो, तो मृत शरीर माना जाता है, उसे डेड बॉडी बोलते हैं। और योगी जो है हमेशा भगवान को याद रखता है, कोई भी कार्य करता है तो भगवान को साक्षी मानकर करता है। हाँ? यहाँ पर कोई जब चोरी करता है तो अरे कोई नहीं देख रहा है, चलो उठा लो अपना है। ये नहीं जानते भगवान तो सब तरफ देख रहा है, हर जगह उसकी दृष्टि है। तो आप सबकी नजरों से बच भी जाएं तो भगवान की दृष्टि से नहीं बच सकते, बहुत खतरनाक है। हाँ? लेकिन लोग सोचते हैं चलो मैंने कमा लिया, मैंने उसको बेवकूफ बनाया। ऐसा नहीं होता है। आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, उसका कई गुना कल आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो उनका पास पूरा लेखा जोखा रहता है, और वो लेखे जोखे के हिसाब से आपको दंड मिलना ही है। और योगी जो होता है, जो समाधि में रहता है, वो करता क्या है? भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, भागवतम की कथा सुनता है, भागवतम की कथा कहता है, कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करता है, कृष्ण लीलाओं के बारे में सुनता है। वो अपने सारे जो बॉडी के लिम्ब होते हैं ना, सारे के शरीर के अंग भगवान की सेवा में लगा दिया। उसके पैर जो है भगवान के धाम जाने के काम आते हैं, उसके हाथ जो हैं भगवान के चरणों में सेवा करने के काम आते हैं। साफ सफाई, पूजा अर्चन, सब जितने कार्य हैं भगवान से रिलेटेड, वो सब उसमें हाथ का इस्तेमाल करता है। खाने के लिए कृष्ण को ऑफर किया हुआ ही प्रसाद खाएगा, महाप्रसाद। तो जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन होता है, और जब हम उस भगवान को उसको समर्पण करते हैं और उसके बाद हम जब वो प्रसाद लेते हैं तो वो महाप्रसाद बन चुका होता है। तो बनाते भोजन है, लेकिन वो हम खाते जब हैं भगवान को ऑफर करने के बाद, भगवान को समर्पण करने के बाद, वो महाप्रसाद बन चुका होता है। तो इस तरह से जो योगी होता है, जो समाधि में होता है, वो भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान की सेवाओं के लिए काम करता है, लोगों को कृष्णा से जोड़ता है। तो लोगों को कृष्णा से जोड़ना, ये एक योगी का ही काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्णा, एक व्यक्ति को कृष्णा से जोड़ता है, वो कृष्णा से पहले ही जुड़ा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें योगी जो समाधि में होते हैं उनके अंदर वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनके सारे कार्य जो है
भगवान के सेवा के लिए ही किए जाते हैं। चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन अलग है दोस्त अलग है, दोस्त ऐसा है दुश्मन ऐसा है, नहीं। वो देखता है कि भाई सबके अंदर परमात्मा का वास है, जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। तो सभी जीव एक समान हैं, चाहे वो शेर बाघ चीता हो, पशु पक्षी हो, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, व्यक्ति हो, गाय हो बैल हो भैंस हो, कोई भी जीव हो, पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा पंडित हो विद्वान हो या गरीब हो या फिर मूर्ख हो, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा का वास होता है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक योगी जो समाधि में होता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं, उसकी दृष्टि क्या होती है, और उसकी गति क्या होती है, कैसे करता है, क्या काम करता है। तो योगी के कार्य जो है वो भौतिक गुणों से के प्रभाव में नहीं होते हैं, भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं होते हैं, और वो जो है इन तीनों गुणों के बाहर होते हैं। भौतिक कौन से तीन गुण हैं? सतोगुण रजोगुण और रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुणों से उसके कार्य संबंधित नहीं होते। जो भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, जो भगवान की सेवा करता है, उसका हर एक कार्य भगवान को समर्पित होता है, तो उसको भौतिकता नहीं छूती है। तो ये है योगी का साक्षात्कार, उसकी दृष्टि और उसके कार्य। श्लोक संख्या 20 से 23। तो योगी अपने साक्षात्कार में सफल कैसे होता है? एक सफल योगी का साक्षात्कार में क्या क्या उसको रियलाइजेशन आते हैं? श्लोक संख्या 20 से 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् आस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो योगी का जो कार्य है वो पूरी तरह भगवान की सेवा करना है, और भगवान की सेवा का तो जो है भौतिकता से दूर होती है। तो योगी जो है क्या करता है? अपने जब भगवान की सेवा करता है तो उसको एक परम सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है परम आनंद के आगार हैं, भगवान स्वयं परमानंद हैं। तो आप जब भगवान की सेवा करेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। जैसे आप एक सेठ के पास काम करते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, तो वो आपको थोड़ा पैसा देता है। आप सेवा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देगा।
काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देगा। तो आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वैसे ही भगवान जो है परमानंद है, आनंद के आगार हैं। तो आप जब भगवान की सेवा, पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान वो आनंद आपको देते हैं। और ये जो योगी होता है वो जो है और किसी चीज पर विश्वास नहीं करता है, और कहीं उसका ध्यान जाने ही नहीं देता। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक स्थिति में वो भगवान को याद रखता है। जब आप किसी पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो उस आपके सारे दुख उसके, दुख सुख उसके हो जाते हैं। तो सुख है, लेकिन अगर दुख आएगा तो वो आपका दुख में भगवान हर लेंगे आपका दुख, क्योंकि आप जो है भगवान पर डिपेंड हो, भगवान पर निर्भर हो। तो आपके सुख और दुख दोनों भगवान की जिम्मेदारी है। कितना भी डिफिकल्टी आ जाए योगी के ऊपर, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान एकदम फोकस होता है, भगवान पर होता है, सत्य पर होता है। और सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही कृष्णा है। इस तरह से जब वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है तो जितनी भौतिक आसक्ति है इन सब से वो दूर हो जाता है, कि ये भौतिक संसार जो है भौतिकता का आगार है। तो जब वो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर रहता है तो क्या होता है, वो भौतिकता उसे टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। जैसे एक तालाब में, एक सरोवर में कमल का फूल कैसे रहता है, कमल का फूल रहता जरूर पानी में है, लेकिन पानी उसे स्पर्श नहीं करता। उसी तरह एक योगी जो समाधि में होता है इस भौतिक संसार में जरूर रहता है, लेकिन भौतिकता उसे स्पर्श बिल्कुल नहीं करती। तो ये है जो है एक योगी जो होता है उसे साक्षात्कार कैसे होता है, उसे एक योगी को पूर्णता कैसे प्राप्त होती है। तो एक योगी जो होता है वो जो है पतंजलि का जो अष्टांग योग होता है उसको पूरी तरह से वो उसका फॉलो करता है, जिसमें पतंजलि के अष्टांग योग कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और फिर समाधि। ये 8 स्टेप चढ़कर, सीढ़ी चढ़कर फिर वो समाधि में होता है। मतलब यम नियम, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, आसन, योगासन करते हैं और प्राणायाम करते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो होती है, श्वास को अंदर लिया जाता है और कुछ समय के पास छोड़ा जाता है। तो इस चीज का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसके उससे हमारा जो है कंसंट्रेशन जो है वो केंद्रित होता है। प्रत्याहार करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या त्याग करना है, तो त्याग की भावना होती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आज जलेबी खा लिया तो कल भी जलेबी खाएंगे और जलेबी में ही आसक्ति आपकी लग जाएगी। जलेबी खा लिया, भगवान की इच्छा थी, फिर जब जलेबी भगवान देंगे तो फिर खाएंगे। तो उसके अंदर जो है त्याग की भावना होती है, आसक्ति नहीं होती है। हाँ, कि 1 लाख मिल गया 2 लाख कैसे बनाए, 1 लाख मिल गया इसमें काम चलता रहेगा, फिर भगवान और देंगे। तो इस तरह से वो पूरी तरह भगवान पे निर्भर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाइए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भौतिकता से दूर रहिए। हाँ, और वो धारण, ध्यान धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान पे ध्यान करता है और वो समाधि में चला जाता है। तो इस तरह से समाधि में जाने के लिए भी अलग अलग सीढ़ियां हैं। एकदम से आप समाधि में नहीं जा सकते, एकदम से आप ध्यान में भी नहीं जा सकते, एकदम से आप धारण में भी नहीं जा सकते। प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, नियम, यम। तो हमको यम से शुरू करके समाधि में जाना है, समाधि डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगी। तो यम से ये जो अष्टांग योग है, पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन आता है। तो इस
योगा का जो है, इसका लक्षण क्या है, इस योग के लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा भाई आप योग में? जब आपके अंदर से भौतिक आसक्ति निकल जाती है, या आपके अंदर भौतिक आसक्ति नहीं है, तो समझ जाइए कि आप योग में हैं। और वो धीरे धीरे समाधि में चला जाता। तो उसकी जो समाधि में जाने की प्रोसेस है, विधि है, वो शुरू हो जाती है जब आप भौतिकता से अपना संबंध तोड़ेंगे। तभी जोड़ेंगे तो फिर तो वो तो एकदम आप कुएं में गिर गए समझो। और भौतिकता में लालच नाम का एक कुआं है, जिसमें जो एक बार गिर जाता है वो वापस उठकर नहीं आता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो योग में होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं। और अगर पूछा जाए कि समाधि है क्या, समाधि मतलब क्या होता है, तो समाधि में जाना मतलब ईश्वर का साक्षात्कार होना, ईश्वर के बारे में ज्ञान होना, सत्य के बारे में ज्ञान होना, कृष्णा के बारे में ज्ञान होना, परमात्मा के बारे में ज्ञान होना, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध के बारे में ज्ञान होना। ये नहीं बोलना कि भाई मैं भगवान हूं। हाँ? आजकल भौतिक में लोग बोलते हैं ना कि आई एम गॉड। प्रभुपाद कहते हैं जो ऐसा बोलता है कि आई एम गॉड, प्रभुपाद सेज ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। जीओडी गॉड एंड डीओजी डॉग। तो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहना चाहिए, अपने आप को ईश्वर समझकर अपनी ही पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग अपना ही फोटो लगा कर पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। किसी व्यक्ति की विशेष की पूजा नहीं की जाती है, गुरु की पूजा की जाती है, जो हमें भगवान के तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखाता है। गुरु भी, गुरु का चयन भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो दो तरह की समाधि होती है अष्टांग योग में। दो तरह की समाधि होती है, एक होता है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, आप फिलॉसफी के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर, तो इसमें समय लगता है लेकिन आप समझ जाते हैं। और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें क्या होता है कि आप जो है किसी भौतिकता में लिप्त नहीं होते, उसमें से आनंद ढूंढने का प्रयास नहीं करते। तो आप क्या होता है, आपके अंदर त्याग की भावना आ जाती है। तो उससे क्या होता है, आपको असीम आनंद मिलता है, असीम सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है। भगवान जो है परमानंद है, तो आप जब परमानंद की सेवा करेंगे तो आपको भी आनंद ही मिलेगा। तो आनंद आता है परमानंद से, इसलिए परमानंद की सेवा करो तो आपको आनंद मिलेगा। महामंत्र का जप करो, ये तो नाम युग है। महामंत्र का जप करने से हम जो है सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, रहेंगे। दिखेगा कि हम उसमें हैं, लेकिन कमल के फूल के समान हम उसमें लिप्त नहीं होंगे। जिस तरह कमल के फूल को, पानी में खिले हुए कमल के फूल को पानी टच नहीं कर सकता है, उसी तरह एक योगी जो समाधि में होता है, भौतिक संसार में रहते हुए भी उसे भौतिकता टच नहीं करती है। और एक जो योगी होता है, उसके अंदर ऐसे कौन से लक्षण होते हैं? एक योगी जो होता है एकदम परम सुख में रहता है, परम आनंद, आप देखेंगे तो हमेशा खुश रहता है। और एक बार वो परमानंद में स्थिर हो गया तो वो फिर जो है, उससे भौतिकता से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई हिला नहीं सकता है।
अभी ये बताइए कि ये सब जो समाधि है, क्या समाधि में आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे, बिना किसी अवरोध के पहुंच जाएंगे? हाँ, तो आप जैसे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल ही जाता है, सिग्नल मिल ही जाता है। ठीक उसी तरह जब योग की समाधि में जाने के लिए आप निकलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ये सबसे, ये सारे क्या है, स्टेज हैं, तो यहाँ ये सारे अवरोध आते ही हैं कि हम भौतिकता में जी रहे हैं और अचानक सो के उठे, चलो अब हम समाधि में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अनेका अनेक कठिनाइयों का सामना करना होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, सबका जो है आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो योग जो होता है ये किसी चीज से जुड़ा नहीं होता है। जैसे आप योग की साधना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ यम होते हैं, कुछ टू डू होते हैं, कुछ नॉट टू डू होते हैं, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ज्ञान रहेगा तो अपने आप अपने रास्ते पर सीधे चलते जाएंगे। और आप सोचें कि हम योग करके कुछ चमत्कार करें, लोगों को कुछ जादू दिखाएं, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लें। हाँ, लोग दिखाते हैं ना, देखो मेरे अंदर तो इतनी सिद्धि है कि मैं जो है ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, दुनिया भर की जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो योग की सिद्धि जो होती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है। योग की सिद्धि जो है भगवत प्राप्ति के लिए होती है। जब आप योग की सिद्धि में निकलेंगे तो वो आपके अंदर गुण आएंगे, तभी तो आप जो है योग की समाधि में पहुंच पाएंगे। तो उस योग की समाधि में पहुंचने से पहले जो योग सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं उसमें लिप्त ना हो जाएं। उसको कहीं अपने भौतिकता प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल न करने लगे। आप अगर योग की सीढ़ी पे आरूढ़ हुए और समाधि में नहीं पहुंच पाए तो आप असफल कहे जाएंगे। हाँ, आजकल देखो लोग योग योगा करते हैं, बहुत सारे योगा क्लासेस हैं, कहते हैं अरे मैं जब से योगा जाने लगा फिट हो गया, सुंदर दिखने लगा, सुडौल दिखने लगा। तो योग जो है सुंदर दिखने के लिए नहीं करना है, योग की साधना भगवत प्राप्ति के लिए ही करना है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर फोकस होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने आपने ऐसा बोला कि भाई योग जो मैं कर रहा हूं मैं फिट हो गया, हाँ मैं बहुत सुंदर दिखने लगा, तो लोग जो है चलो सुंदर दिखना है तो योग करेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। आप बाय डिफॉल्ट सुंदर दिखेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, सब हो जाएंगे। तो अगर आपका हायर गोल होगा तो लोअर अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। आप अगर लोअर गोल रखते हैं कि मुझे सुंदर दिखना है, सुडौल दिखना है, हाँ जुम्बा करना है, ये योगा करना है, वो योगा करना है, तो फिर आपका क्या है, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं आप। समाधि में कभी नहीं जा पाएंगे, कहीं और चले जाएंगे लेकिन समाधि में नहीं जा पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है, हाँ अभी दूसरी बात यह है कि कृष्णा, ये जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत जो है, इसमें ये बेस्ट क्यों है? तो ये बेस्ट इसलिए है कि इसमें आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये अष्टांग योग से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो है डायरेक्ट सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। तो वो जो कीर्तन आप कर रहे हैं उससे जो है भोजन का स्वाद बदल जाता है। मतलब आप खुशी खुशी जब खाना बनाएंगे ना तो वो स्वाद जो है, वो जो आ, उसके अंदर, वो जो आपका खुशी जो है वो खाने के अंदर भी जाएगा। तो आप अगर खुशी खुशी खाना बनाएंगे
और दुखी दुखी रोते रोते खाना बनाएंगे, दोनों के टेस्ट में फर्क होगा। तो इस तरह से ये कृष्ण भावनामृत में जो है पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। ये पूर्णानंद की विधि, और इसमें कोई भी इंद्रिय तृप्ति आपके मन में भावना नहीं आती है कि मेरा फायदा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि आप भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगे होते हैं। आपको आपको जो है डिवोटी फ्रेंड जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, गाइड करते हैं, ऐसा करो प्रभु जी, ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत जाओ। तो जब आप फिजिकल सेवा करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। योग में क्या है कि भटकने के ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन कृष्ण भावना में तो भटकने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, भक्तों के साथ कर रहे हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो दूसरा आपको टोक देगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है। तो ये है। और जो भौतिकता में लिप्त होते हैं, तो ना वो तो अष्टांग योग कर सकते हैं, ना तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और जो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा अलर्ट अलर्ट रहते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना हो जो भगवत सेवा से ना जुड़ा हो, तो अपना पूरा एक्टिविटी वो भगवान की सेवा में ही लगा के रखें। और जब आप भक्तों के संग में होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब एक दूसरे पर वॉच भी रखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो अगर कोई गलत जा रहा है तो वहीं पर टोक के उसको कर दिया जाता है। जब ये आप योग कर रहे हैं, घर में बैठ के एक जगह पे शुष्क चिंतन कर रहे हैं, तो पता नहीं आंख बंद करने के बाद आपका मन कहाँ पहुंच गया होगा। लेकिन जब आप आंख खोल के भगवान की सेवा स्वयं कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भगवान के लिए डोनेशन सेवा में हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, भागवतम की क्लास अटेंड कर, ये सब क्या है, फिजिकल आप एकदम इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी भावना आ सकती है, लेकिन वो आएगी फिर चली जाएगी, उसमें आप लिप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप भक्तों के संग में हैं, ग्रुप वैसा है, फिजिकली आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में जो है श्लोक संख्या 34 बताते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित शक्तिर इति। तो भगवान बताए, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कि ये जो श्लोक संख्या 34 में बता रहे हैं कि ये जो योग का प्रैक्टिस है ना, ये पतंजलि योग पर पूरी तरह से आधारित है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मीन्स आप जो है आ, भौतिक प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें फॉल डाउन के चांसेस होते हैं, कि पतन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट कर रहे हो। जब कोई काम इनडायरेक्ट कर रहे हो तो उसमें सफलता के चांस कम होते हैं, जब आप डायरेक्ट काम कर रहे हो तो उसमें सफलता के चांस ज्यादा होते हैं। तो वो योग जो है पतंजलि योग सिस्टम पर पूरी तरह से आधारित है। चित्त शक्ति, इस श्लोक में कहता है वह शब्द चित्त शक्ति, मतलब चित्त शक्ति। तो जो चित्त होता है, जो आपका माइंड होता है, उसको आप वश में लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है श्लोक संख्या 20 से 23 जो है बताया गया है कि कैसे आप जो है पतंजलि योग सिस्टम
के थ्रू भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आपको अवरोध आएंगे, और अगर आप भगवान की सेवा डायरेक्ट करते हैं तो आप कितना आसानी से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और उसमें पतन के चांसेस कम रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।